Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by Mentor Box. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at Mentor Box by Stocks Box. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So Nifty is closed about 158 point plus today, and Sensex is about 600 point rally today, and Bank Nifty is about 366 point plus at 41,648. So big rally today. After a few days, about a week, market has given you a big rally on the market today. So what happened today on the market? In Nifty आज gap up opening था सुबह. It has opened about 17,800, which we are discussing in yesterday's video. So 17,800 के ऊपर खुला market. वहां से it came down over here. The opening price of this is around 17,826. वहां से उसने लो बनाया until around 17,800 और उसके ऊपर again it has started rallying and throughout the day it went on the uptrend on the market. So now what happened over here? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 17,800 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है then I'm expecting strong long on the market. I was expecting about 30-40 point as a target. Why? Because if we just check the daily chart here, so this is the daily chart for the Nifty कि मार्केट यहाँ पे एक की रेंज के अंदर घूम रहा था. अगर मैं आज का एक कैंडल छुपा देता हूं और अगर देखता हूं तो एक ही लेवल पे अंदर ऊपर नीचे हो रहा था. Yesterday we have discussed in the video कि मार्केट इज रिट्रेसिंग नियर अबाउट 78.6% से वो रिवर्स हुआ था एंड क्लोज्ड अबाउट 61.8%. So that was a sign of long yesterday. So market has behaved exactly like that. और मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट के चार्ट पे आपको चेक करना था कि लास्ट में जो सेलिंग आया था, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यस्टरडे सेलिंग के, यहाँ पे जो सेलिंग आया था दैट इज 17,800 के आसपास से. मार्केट अगर उसके ऊपर जाता है और सस्टेन होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग विद द टारगेट ऑफ 40 पॉइंट्स. सो ओवरऑल आज उसके ऊपर ही खुला. अगेन इट केम बैक अराउंड 17,800 और उसके ऊपर सस्टेन हुआ on the 15 minute chart. So you can see over here it has given you a decent rally on the market. So this is the day today. Now abhi kal kya kar sakte? We'll discuss the yesterday's trades in this video. I will give you about 4 to 5 stocks which you can trade tomorrow. So watch out my full video on YouTube. You can search for the Stocks Box channel every day. We are uploading the video between 6 to 7 every day. So you can just go to YouTube and search for the Stocks Box. You'll get our Stocks Box channel and you will get all our videos over here. So every day I'm giving you some trades. I'm giving you the market trade. Nifty में क्या करना चाहिए, Bank Nifty में क्या करना चाहिए. So every day I'm providing that. So do subscribe to our channel for a regular update. So let's go on the Nifty again. So अभी कल क्या करना चाहिए, पहले तो चेक करते हैं कि कल क्या करना चाहिए. अगर मार्केट में मैं अभी देखता हूं, दिस इज द निफ्टी चार्ट. सो मैं अगर वीकली चार्ट अगर निफ्टी का ओपन करता हूं तो निफ्टी वीकली चार्ट पे अगर मैं जस्ट रिमूव दिस, लास्ट वीक का जो निफ्टी का हाई था दैट वाज 17,916.90 और दिस वाज अ इनसाइडर कैंडल. व्हाई इनसाइडर कैंडल? बिकॉज जो उससे पहले का जो वीक का हाई था और लो था थ्रू आउट द वीक, लास्ट वीक में वो मार्केट साइडवेज था. इट हैज नॉट ब्रोक द हाई लेवल और द लो लेवल, उसी के अंदर रह गया था. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैंने आपको मंडे को भी बताया था और फ्राइडे को भी बताया था कि मार्केट हायर हाई पे क्लोज हुआ है. जो प्रीवियस वीक का हाई क्लोज था दैट इज 17,854. लास्ट वीक का जो फ्राइडे का क्लोज था दैट इज 17,856 और ये वीक में जो ये वीक लास्ट वीक का जो हाई था वो हाई ब्रेक करके आज अभी ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग टुमारो. जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो टारगेट अपर ट्रेंड लाइन, मैं आपको काफी दिन से ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूं कि मार्केट इज गोइंग अहेड विद दिस ट्रेंड लाइन. यही रेंज में घूम रहा है, एक ही चैनल के अंदर घूम रहा है. सो मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड्स टच दिस ट्रेंड लाइन टुमारो.
ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर वीकली चार्ट पे जो हाई था लास्ट वीक का उसके ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट. फॉर दैट रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ऑन द मार्केट टुमारो विद द ट्रेंड टारगेट जो हमारा 18,030 का जो मैं आपको टारगेट बता रहा था यहाँ कहीं. सो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर कि कल मार्केट लॉन्ग होगा एंड इट विल गिव यू अबाउट 30-40 पॉइंट सेम 40-50 पॉइंट मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट तो है ही बट मैक्सिमम बाय 50 पॉइंट इट विल गिव यू रिटर्न ओवर हियर. सो ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट दैट ऑन द निफ्टी. सो कल क्या कर सकते हो, कल आपको क्या करना है, 15 मिनट का कैंडल खोलना है सिंपल, जो मैं आपको रोज बताता हूं, मेरे सारे वीडियोस में बताता हूं कि आपको सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है. 15 मिनट मार्केट को देखना है क्या हो रहा है. 15 मिनट के बाद यू नीड टू डिसाइड कि अभी मुझे करना क्या है. सो मेरा ट्रेंड क्या है कल का, मैंने आपको बताया कि कल का ट्रेंड लॉन्ग है बाजार का. सो बाजार में जो भी आप ट्रेड करोगे कल, निफ्टी में जो ट्रेड करोगे वो आपको चेक करना है पहला 15 मिनट का कैंडल. मैं आपको दो पॉसिबिलिटी दे देता हूं. फर्स्ट है पहला 15 मिनट का कैंडल देखो, अगर पॉजिटिव होता है तो लॉन्ग कर लो. आइदर आज का जो हाई है अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन गया फॉर एग्जांपल, तो पहला कैंडल पॉजिटिव बन गया तो लॉन्ग कंफर्म हो जाएगा आपका. बट अगर पहला कैंडल नेगेटिव बनता है तो ड्यूरिंग द डे जो भी कैंडल 15 मिनट का आज के हाई के ऊपर क्लोज होता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो मार्केट में. तो दो पॉसिबिलिटी मैंने दे दी. इफ यू आर ऑफिस गोइंग पीपल जिसको सुबह का ही टाइम मिल पाता है ट्रेडिंग करने के लिए, देन यू कैन लुक आफ्टर फॉर द 15 मिनट कैंडल ओनली. पहला 15 मिनट का कैंडल देखना, अगर ग्रीन बन गया तो लॉन्ग कर लेना विद द लो स्टॉप लॉस. सेम वे यू कैन गो फॉर द कॉल ऑप्शन, एटीएम का कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए और लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 है कि पहला कैंडल इनके समझो नीचे खुला मार्केट और नेगेटिव बन गया और थ्रू आउट द डे अगर मार्केट आज का जो हाई है दैट इज 17,954, आज का हाई कितना है, लेट्स सी ओवर हियर, लेट मी चेक ऑन द डेली चार्ट, एग्जैक्टली विल गेट इट. सो आज का हाई है 17,954, सेम हाई 954 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, 15 मिनट के कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, उसके बाद और एक 5 मिनट वेट करना, अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो आपका लॉन्ग कंफर्म हो जाएगा ऑन द निफ्टी टुमारो. So look after for the long opportunity on the Nifty tomorrow with the 15-minute green candle or on the breakout. So this is the trade, you can do it tomorrow on the Nifty. Now what about Bank Nifty? Bank Nifty में क्या कर सकते हैं? Let's see that. So Bank Nifty में अगर मैं चेक करता हूं तो Bank Nifty अभी भी वही रेंज के अंदर है. So जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा, I am not interested to do anything on this. मैंने कल भी बताया था कि मार्केट इज लुकिंग लाइक दैट, वॉलेटाइल है. सो ओवरऑल जो भी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी बनेगी उसमें मैं ट्रेड करूंगा. बाकी मार्केट में ट्रेंड नहीं है देन देयर इज नो ट्रेड. सिंपल, मेरा सिंपल फंडा है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं दिखता है तो आई विल नॉट ट्रेड इट. सिंपल. आपको अदर देन दैट इंडेक्स में ट्रेड करने के अलावा यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑन द स्टॉक साइड एज वेल. तो आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं. So overall निफ्टी में आप कल लॉन्ग कर सकते हो. बैंक निफ्टी इट्स अ वेट एंड वॉच. नाउ लेट्स सी ओवर हियर यस्टरडे क्या हुआ हमारे स्टॉक का. यू कैन सी ऑन माय यूट्यूब चैनल आई एम मेकिंग दिस वीडियो सिंस 9th of January, more than 1 month ago now. We have started on the Stocks Box channel. We are the brand of BP Wealth. We have started the series from 9th of January और उसका हम लॉग भी करते हैं. एवरी डे आई एम लॉगिंग द शेयर, जो भी मैं आपको दे रहा हूं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो तो अलग है, उसकी मैं लॉग में इसमें एंट्री नहीं कर रहा हूं. प्लस स्पेशल डे की आपको जो स्ट्रैटेजी बताता हूं, जैसे बजट डे की स्ट्रैटेजी थी या आरबीआई पॉलिसी की स्ट्रैटेजी थी, तो वो छोड़ के जो भी मैं एंट्री कर रहा हूं वो तो मैं आपको अलग रिजल्ट उसका दिखा ही रहा हूं. बट अदर देन दैट जो भी एंट्रीज हम यहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ, इंडेक्स दे रहा हूँ, उसकी सारी एंट्री यहाँ हो रही है. इवन जो भी ट्रेड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे एंट्री में करता हूं. जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी कल क्या करना है, लॉन्ग करना है एट द 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल, तो इसमें ऑलरेडी एंट्री करी हुई है. ओके, टू सेव आवर टाइम आई हैव ऑलरेडी डन द एंट्री. ओवरऑल कल यहाँ पे आप देखोगे ऑन 13 Feb कल का जो वीडियो था, 14 Feb के लिए मैंने आपको कुछ 6 एंट्रीज दी हुई थी, 6 स्टॉक्स और इंडेक्स का एंट्री दिया था. फर्स्ट वाज निफ्टी, मैंने आपको लॉन्ग दिया था. ओके मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रिट्रेसिंग ऑन द
look for long if started moving above 17,800. तो आज मैंने दिखाया आपको कि मार्केट 17,800 के ऊपर चल रहा है. लुक फॉर शॉर्ट इफ 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बिलो टुडेज लो. जो कल का लो था अगर उसके नीचे जाता है तो ही शॉर्ट था, वरना इट वाज लॉन्ग ओवर हियर. सो 17,800 के ऊपर मार्केट चला. 15 मिनट का कैंडल अगर चेक करोगे ऑन द निफ्टी फ्यूचर, यहाँ पे अगर S&P निफ्टी फ्यूचर करता हूं, इफ यू कैन सी, I think third or fourth candle has given me a close above 17,800 over here. Correct? The first candle Nifty future पे long था. Okay? तो यहाँ पे अगर मैं spot देखूंगा तो spot पे there was a confusion. If you check, it was a red candle on the spot. Future पे there was a green candle. So आपको spot ज्यादा रेफर करते हैं हम जनरली. तो हमने देखा स्पॉट पे निफ्टी 17,800 के ऊपर ऑन द थर्ड और फोर्थ कैंडल पे क्लोज हुआ. ओवर हियर 17,800 के ऊपर क्लोज हुआ ऑन द थर्ड कैंडल एट अराउंड व्हाट टाइम, अराउंड 10 AM. 10 बजे के आसपास ये कैंडल क्लोज हुआ रहेगा. सो वी हैव टेकन द लॉन्ग ऑन निफ्टी फ्यूचर अराउंड हियर एट 17,852. अवर स्टॉप लॉस वाज एट 17,817. मैंने आपको टारगेट बोला था 30 से 40 पॉइंट का मैक्स. सो यहाँ पे इट हैज गिवन अ डिसेंट मूव. 40 पॉइंट का मूव यहाँ पे दे दिया. उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया एंड आफ्टर दैट अगेन वेंट अप. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच बाउंस. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में मूवमेंट आएगा इन केस ब्रेकआउट होगा तो, बट ओवरऑल 30-40 पॉइंट का गेन हो गया. सो वी हैव डन अ लॉग ऑफ दैट. निफ्टी में आज हमने एंट्री किया था 17,853. 817 वाज माय स्टॉप लॉस ऑन द डे लो. टारगेट वाज 40 पॉइंट अप, 30 पॉइंट अप. ओके 40 पॉइंट अप टारगेट था. मैंने बोला था 30 से 40 पॉइंट का टारगेट पकड़ सकते हो. सो इट हैज गिवन मी एग्जिट एट अराउंड 17,892. सो इट हैज गिवन मी अ प्रॉफिट ऑफ 1950 रुपीज ऑन द one lot on a capital of 1,15,000 and on a capital of 10 times, that is around 11,50,000 something. उस पे आपको अगर रिटर्न कितना मिला, that is 19,500 on the 10 lots. अगर 10 लॉट ट्रेड करते हैं तो यू कैन एबल टू अर्न अबाउट 19,500. अगर एक लॉट ट्रेड करते तो 1950 मिल जाता. अदर देन दैट, इफ यू जस्ट चेक ऑन द एक्सेल शीट, I have given some stocks to trade. Titan, Power Grid, HDFC Life, Tata Motor, Nykas. उसमें से आज 2 ही स्टॉक्स में एंट्री हुई. जैसे मैंने बताया था कि 15 मिनट की कैंडल आपको देखनी है. जो भी रीजन मैं आपको देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन द 15 मिनट. अगर मेरा व्यू गलत होगा कि मार्केट समझो लॉन्ग दे रहा हूं, अगर मेरा व्यू गलत है कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो 15 मिनट की कैंडल आपकी नेगेटिव हो जाएगी. अगर मैंने शॉर्ट का व्यू दिया है तो 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव हो जाएगी. तो उसमें एंट्री हमारी नहीं बनेगी, बिकॉज मेरा व्यू और मार्केट का व्यू दोनों क्रॉस हो रहा है. फॉर दैट रीजन वी विल नॉट डू अ एंट्री ऑन दैट. सो दिस इज द थिंग. सो HDFC Life and Tata Motor, if you haven't checked my video of yesterday, you can go to Stocks Box channel और यहाँ पे आप कल का वीडियो चेक कर लीजिए, आपको रीजन मिल जाएगा. सो HDFC Life देख लेते हैं एक बाय एक, वन बाय वन. HDFC Life में शॉर्ट बना था. You can see here 15 मिनट की कैंडल पहले नेगेटिव हुआ, उसके बाद you can see the fall. अच्छा खासा फॉल हुआ. So HDFC Life यहाँ पे it has given me a profit of, you can see over here, as per the risk of about 2,000 rupees, we can able to trade about 392 stocks. तो उसमें हमारे बने 823 rupees. Why? Because trailing stop loss मेरा ट्रिगर्ड हुआ 5 मिनट के चार्ट पे. So it has given me a 2 rupees move, 2 to 3 rupees move. And it has given me a profit of 823 rupees on a capital of maximum which we are using 2 lakh and risk of about 2,000. और 823 रुपया मिला. In case अगर 10 टाइम कैपिटल यूज कर रहे हो then you can able to earn about 8,232. Other than that, Tata Motor was executed today. So Tata Motor में आज एंट्री बनी थी. Tata Motor went on the loss. It was trailing stop loss and it has given me a loss of around 1,078 रुपीज. अगर टाटा मोटर का चार्ट देख लेते हैं, सो फर्स्ट कैंडल अगर मैं चेक करता हूं, इट इज नेगेटिव कैंडल. यहाँ पे फर्स्ट बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी थी. फॉर दैट रीजन, सिंस इट वाज अ बिग मूव, टाटा मोटर्स गॉट कवर्ड अप एंड इट हैज ट्रिगर्ड माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. मैं 5 मिनट के हिसाब से एवरी नेगेटिव कैंडल पे आपको बोलता हूं कि आपको ट्रेल करना है. सो इफ यू जस्ट चेक PSAR,
So you can see over here, I was regularly trailing, and at the end, Tata Motors has thrown me out around, I'll just tell you, 439. जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 439 के आसपास, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी हुई है, वो रेड कैंडल का जो यहाँ पे 438.95 है PSR पॉइंट, दैट वाज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. इनिशियल स्टॉप लॉस वाज 442. आफ्टर दैट इट वाज ट्रेलिंग, ऑटोमेटिकली रिस्क मेरा रिड्यूस कर दिया एंड इट हैज थ्रोन मी आउट. सो ओवरऑल आज का क्या नेट नेट रहा, ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 lakh you can able to make about 1695, and on a capital of 30 lakh we have able to make about 16,900 something we have made it. So on the trading summary I have made the log. Since you can see 9 Jan से हम log बना रहे हैं, so if you can just check over here, 1695 का मैंने एंट्री कर दिया, on a capital of 3 lakh it is written here, 30 lakh पे एंट्री कर दिया. So you can see over here on the total we can able to make about 8.85% in this month. Last month was 24.5%. Okay, this is the gross profit, net profit 22% and 7%. This is simple. So overall we are in already half of the month, 8% we have already made from the intraday trading. और ये ट्रेडिंग मैंने आपको प्रीवियस डे पे ही बता देता हूँ कि कल क्या करना है आपको, तो उस हिसाब से if you able to trade it, you can see over here I am also maintaining this here. अगर मैं नीचे आपको लेके जाता हूं, so यहाँ पे मैं आपको टोटल ट्रेडिंग डेज लिखे हुए, सिंस 9 Jan there are about 26 ट्रेडिंग डेज. आउट ऑफ दैट मैं सिर्फ 14 दिन ही प्रॉफिट में हूं, 11 दिन मेरे ट्रेड लॉसेस में है, बट वो सारे स्मॉल लॉसेस है या मीडियम लॉस है. कोई भी एक भी ट्रेड आपको बिग लॉस नहीं दिखेगा. दिस इज द साइकोलॉजी गाइस. मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम जब प्रॉफिट होता है आपको, तो आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हो, बट लॉस की जब बारी आती है, जो इंट्राडे ट्रेड है आपका वो स्विंग में हो जाता है, लॉन्ग टर्म होता है, आप निकलते ही नहीं है उसमें से. So this is the biggest mistake you do. So don't do that mistake. Overall आपके सारे दिन अच्छे नहीं जाने वाले. मार्केट रोज मूवमेंट नहीं करता. आपको एक अच्छा मूव की तैयारी होती है, अच्छा मूव का एक्सपेक्टेशन होता है, वो आपको 3 या 4 दिन में से एक ही दिन देगा, बट वो अच्छा मूव आपको अच्छा रिटर्न देके जाता है. जैसे कल के आज आप ओवरऑल ये महीने में देखोगे तो देयर आर स्मॉल प्रॉफिट ओवर हियर, बट yesterday was a big move which has given me about 10,000 rupees profit in 2 lakh capital and 1 lakh rupees profit in 30 lakh capital. So this is the move, you can find it over here. रोज आपको नहीं मिलने वाला. You can see over here during this Feb month big profit मुझे सिर्फ 2 ही हुए, बाकी सब medium profit, small loss, medium loss ऐसा ही है. So this is important. Now let's see over here कल के लिए क्या कर सकते हैं. तो I have identified the stocks for you. निफ्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया. पावर ग्रिड सेम रीजन है जो कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीकली का ब्रेकआउट होना चाहिए, इनसाइडर कैंडल. जैसे आज निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ, सेम वे पावर ग्रिड का ब्रेकआउट होगा अबाउट 218, देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग. सो आई विल वेट फॉर दैट. देन टीसीएस आई एम लुकिंग फॉर द शॉर्ट बिलो टुडेज लो. आई हैव रिटन इट ओवर हियर. तो यहाँ पे अगर टीसीएस में देखता हूं तो आपको करना क्या है, if you can just check the daily chart over here, this is the TCS chart. TCS यहाँ पे टॉप बना के नेगेटिव फॉर्म हो रहा है. ये वाला जो हाई बना के यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी थी, that was bearish engulfing pattern, और वहां से नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है, तो प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो रहा है. So I'm expecting a short over here. आज का लो क्या बना है, the low is 3495 और क्लोजिंग है 3500. कल अगर 15 मिनट की पहली कैंडल नेगेटिव होती है और 3495 के नीचे क्लोज होती है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो. आइदर ड्यूरिंग द डे 3495 के नीचे कभी भी कैंडल क्लोज होती है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो टीसीएस पर. So this is stock number 1. You can look for the short on TCS. Stock number 2 was Power Grid, which I've already given you. Then the other stocks I can look after. First is Naukri. The third stock is Naukri. That is Info Edge. So if you just check Naukri, Info Edge, so Info Edge is on the double bottom right now. यहाँ पे bottom हो रहा है, reverse हो रहा है. Green candle आप देख रहे हो, तो ये candle पे आप long कर सकते हो कल Info Edge में with the 15-minute positive candle. तो आपको करना क्या है, if you are new to my video, आपको जाना है 15 मिनट के चार्ट में. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस,
पहली कैंडल देखनी है 15 मिनट की, अगर पॉजिटिव कैंडल होती है दैट मीन्स देयर आर पॉजिटिव बायर्स ऑन दैट कैंडल, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन नौकरी फॉर द इंट्राडे, या जो भी मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूं. सो नौकरी यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग. देन एलजी इक्विपमेंट, अगर एलजी इक्विपमेंट देखते हो तो आज वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ है. इफ यू जस्ट चेक द डेली चार्ट ओवर हियर, तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बड़ा ब्रेकआउट हुआ है. इफ यू कैन जस्ट चेक, इफ आई जस्ट ऐड द वॉल्यूम इन दिस, so this is tradingview.com guys, so you can see the chart in that. एलजी इक्विपमेंट में आप देखोगे तो एक वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट हुआ है. दैट मींस यस्टरडे का जो वॉल्यूम था उससे आज हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ऑन द एलजी इक्विपमेंट, और इसको हम बोल सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग एज वेल. So I can look after for the long with the 15-minute positive candle. Then Amar Raja batteries, you can short below today's low. So Amar Raja batteries अगर देख लेते हैं, okay, so this is Amar Raja batteries. Amar Raja batteries में डबल टॉप से ये नीचे आ रहा है and it is forming a M. आपको M जैसा दिख रहा है, so it is called M pattern. तो अगर कल का आज का जो लो है उसने अगर लो ब्रेक कर दिया, then I'm expecting a short on Amar Raja batteries intraday. तो आज का लो का वेट करना. What is the low of today? 601. 601 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव होता है, then go for the short. It can be first candle as well. It can be during the day candle as well. So office going people, आपको अगर सुबह का टाइम मिलता है, then don't trade this. अगर पहला कैंडल ही नेगेटिव बन गया तो आप कर सकते हो. अगर आफ्टरनून तक आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो, then you can do throughout the day. So intraday traders can do throughout the day. Then Oil India, I'm expecting a breakout. Oil India में भी breakout हुआ है. So this is Oil India. Daily chart है Oil India का. Okay, let me remove the drawings. You can see over here, last 2 दिन से बड़े वॉल्यूम के साथ ये बढ़ रहा है Oil India. So I'm expecting a long on Oil India tomorrow if first 15-minute candle is forming positive. So Oil India is the long. And last stock is Canara Bank, which you can look for. कैनरा बैंक में डबल बॉटम से ग्रीन कैंडल बना हुआ है एंड इट इज रिवर्सिंग फ्रॉम द बॉटम, रिवर्स हो रहा है यहाँ पे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ऑन द कैनरा बैंक विद द 15-minute पॉजिटिव कैंडल. सो कैनरा बैंक में आप कल लॉन्ग कर सकते हो. जैसे मैंने आपको एम बताया, इसमें ये बन रहा है डब्ल्यू. ओके, सो डब्ल्यू के नीचे क्या होता है, हमने धमाल मूवी में देखा है, बहुत सारा सोना होता है, बहुत सारा गोल्ड होता है. सो इट इज फॉर्मिंग डब्ल्यू. डब्ल्यू इज गोल्ड. तो यहाँ पे डब्ल्यू के एंट्री मिल रही है, सिंपल. सो दिस इज द स्टॉक. सो देर आर अबाउट 7 स्टॉक्स आई हैव गिवन टू यू. ये 7 स्टॉक्स में आपको कल एंट्री नहीं मिलेगी. आपको 15 मिनट की कैंडल जो मैंने बताया उसमें देखना है. इसमें से लगभग 3 से 4 स्टॉक्स में ही आपको कल एंट्री मिलेगी, विच यू कैन लुक आफ्टर. And the index which you can look after. Total 8 trades I have given to you for tomorrow under capital of 3 lakh or either capital of 30 lakh. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.